इंसान के लहू को पियो इज़्ने आम है। इंसान के लहू को पियो इज़्ने आम है। अंगूर की शराब का पीना हराम है। ऑफ कोर्स, सही तो बोला है। How would I know that my purpose for doing something is right or wrong? Like, they have killed almost their own population, out of some philosophy or ideas or whatever, however they want to run the country or whatever. जिसमें नज़ीरुद्दीन शाह वहाँ खड़े होके आई थिंक कुछ उन्होंने जब वो अपनी पूरी स्पीच दी थी और आखिरी में उन्होंने ये कहा था कि yeah, because I mean they kill like freaking millions of people, Yeah, So, so sad. yeah. That's true. I can see that in your actions, Yeah, that's true. right? If you have to show it, then you don't do it. You're just showing it to people. इंसान के लहू को पियो इज़्ने आम है। इंसान के लहू को पियो इज़्ने आम है। अंगूर की शराब का पीना हराम है। ऑफ कोर्स, सही तो बोला है। ऐसा ही बोला। नहीं, What did ये you understand? तंजिया है। Okay. फिर से पढ़ो। तो कहते हैं कि इंसान के लहू को पियो इज़्ने आम है। इंसान के लहू को पियो इज़्ने आम है। अंगूर की शराब का पीना हराम है। मतलब मुझे जो समझ आया वो ये है कि इंसान को तंग करना, इंसान को हर्ट करना है, मतलब इंसान का ब्लड, मतलब किसी का खून पीना। ये ऑब्वियसली अगर आप ड्रैक्यूला हो तो आप असल खून पियोगे, लेकिन इस शायर इस तरीके से बोल रहे हैं कि किसी को तंग करना, किसी को हर्ट करना जो है वो सोसाइटी आपको करने देती है, दैट्स अलाउड। बट इन आवर कल्चर स्पेशली, आई थिंक द पोर्ट माइट बी मुस्लिम। वाइन जो है, शराब जो है वो हराम है, लेकिन I think it's in every culture almost कि आप पीने से परहेज़ करो या मना किया जाता है almost किस कल्चर में या किस there might be religions out there that say like कि पियो, right? बट अगर आप उसको कोई भी रिलीजन को किसी भी उसमें नॉट इवन रिलीजन किसी भी फिलॉसफी को डिवाइन एंगल देते हो तो दे से कि मत पिया करो, राइट? तो क्योंकि दैट रिमाइंड्स मी ऑफ जो चारवाक फिलॉसफी है, वो तो कहते हैं पियो मौज करो, करने ही मज़े आए हो दुनिया के अंदर। राइट? तो दैट इज अ बट आई थिंक इसमें यस इट इज़ तंज है, एक सरकास्टिक कमेंट है दुनियादारी के ऊपर कि आपको मतलब दुनिया के अंदर आप कुछ भी मतलब दूसरों को धोखा दो या तंग करो या वो करो, इट्स ओके, राइट? कि वो हराम नहीं है, वो इसको ठीक बताया गया। आप किसी का दिल तोड़ दुखा रहे हो, आप किसी के पैसे लेके भाग रहे हो, किसी से चोरी कर रहे हो, किसी का वो कर रहे हो, नुकसान करा रहे हो ऑन पर्पस। तो उसमें यू नो व्हाट इट रिमाइंड्स मी ऑफ? व्हाट डज इट रिमाइंड यू? इट हैव यू सीन द शो द बिग बैंग थ्योरी? या। उसमें एक कैरेक्टर है शेल्डन, हाँ। राइट? आई थिंक आई मीन इट्स काइंड ऑफ लीड, राइट? तो उसमें वो आई थिंक ही इज लिटिल लाइक ही इज अ जीनियस, बट आई वांट टू से ही इज autistic, but I'm not sure like what Yeah, category he has to he fall is a under, little right? on the spectrum is what I would. He's on the spectrum, right? So but then so he doesn't understand like sarcastic comments or like or he doesn't understand what's good, what's bad, like and then I think he asked his girlfriend that hey, what do you how would I know that my purpose for doing something is right or wrong? Like if I want to tell someone that they are doing something wrong, or I want to teach them a lesson, let's just say, in one way or the other, like even in as a friend, right? Ki I have to like tell them, to teach them that hey, this is wrong, this is right. How do I know my intentions are good or not? Like and she said, add this to your the whatever you want to say, add this little piece after it and see if it makes sense. If it makes sense, then you're doing it wrong, your intentions are wrong. So she said, say that'll show them, right? That'll So show. if I do blah blah blah, that will show them, Oh. right? And if it fits that sentence, then that means your intentions are wrong. Oh, that's a good way. Like it was like a like in a thumb rule or like a Rule of thumb, yeah. shorthand that Yeah. she, yeah, yeah.
to and that kind of like it was in a joking way and Mm. everything, like, you know, but that's how like she was explaining it to him that, hey, this is how you can gauge what your intentions are, or you can gauge in what way you're like, you know, kind of proceeding with it, Mm. right? So I think that's a good way to teach your kids as well, you know, like एक जो um, और एक मुझे और भी याद आता है इसके अंदर, आई थिंक इस एक पाकिस्तानी मूवी आई थी खुदा के लिए, Mm. राइट? उसकी मैं अक्सर जिक्र करता रहता Mm. हूँ, बट उसमें लास्ट में एक जो कोर्ट रूम का सीन है Mm. जिसमें नज़ीरुद्दीन शाह वहाँ खड़े होके आई थिंक कुछ वो मतलब केस की हेल्प करने के लिए, मतलब वो कर रहे थे कि केस को कैसे आगे बढ़ाया जाए फ्रॉम द रिलीजियस एंगल और समथिंग। Mm. तो वो आए थे, तो वो उन्होंने जब वो अपनी पूरी स्पीच दी थी और आखिरी में उन्होंने ये कहा था अम, कि ज़ाहिर से पहले बातिन को ठीक करो। ज़ाहिर मतलब आपके सामने आप ऊपर से कैसे लगते हो, दाढ़ी बढ़ाकर और आपका कुर्ता पजामा पहनकर और ये Mm. सब, इससे पहले अपने अंदर आग लगाओ। Mm. अगर इश्क खुदा से करते हो तो पहले अपने अंदर आग लगाओ, बाहर खुद ब खुद आएगी, Mm. राइट? तो नहीं तो ये होगा कि दाढ़ी बनाए, कुर्ता पजामा पहने, लोगों को धोखा देते हुए लोग हलाल मीट की दुकान तलाशते फिरेंगे, Mm. राइट? सारा दिन आप दुनिया को धोखा दे रहे हो Mm. और फिर शाम को जाके हलाल चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आपके जो एज अ साइन ऑफ फॉरगिवनेस, Yeah. Yeah. राइट? क्योंकि आपने जाहिर पे फोकस किया, आपने बातिन पे, अपने अंदर फोकस नहीं किया कि मैं अंदर से कैसे अच्छा हो सकता हूँ, मैं उसके अंदर डेप्थ कैसे ला सकता हूँ। आप बाहरी चीज़ें दुनिया के लिए करते हो, जब ये हलाल चीज़ें जो मतलब किसी भी कल्चर के अंदर, किसी भी रिलीजन के अंदर जो अभी मतलब पूजा करना या संडे को चर्च जाना या ये सब Mm. करना, दीज आर द थिंग्स यू आर डूइंग इट फॉर द कम्युनिटी, आप दिखाने के लिए वो कर रहे Mm. हो। बट उससे पहले जब आप अपने अंदर, अगर आपके अंदर इश्क की आग लगी हुई है तो आपको नहीं फ़र्क पड़ रहा संडे या मंडे आप जाओगे Mm. वहाँ पर, अगर आपको खुदा वहाँ मिल रहा है तो, ये तो राइट? ये तो अनफॉर्चुनेटली बहुत आम है हमारी सोसाइटी में, हमारी डेली लाइफ में। हम कितने लोगों को देखते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ होती हैं और बट हरकतें उनकी देखो क्या क्या होती हैं। मतलब अब उसमें तो हम उसमें तो जाने वाले नहीं हैं अभी, लेकिन दैट्स अनफॉर्चुनेटली दैट्स व्हाट इट इज़, राइट? लोग अपने आप को एक तरीके का दिखाते हैं बट अंदर जो होता है वो तो आप किसी को नहीं बता सकते। इसीलिए जो है आई थिंक दाढ़ी हो ना हो आपके काम, मतलब दाढ़ी से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि मुसलमानों की, मतलब आप आउटवर्ड जो दिखाते हो वो जो भी हो, लेकिन आपकी इंटेंशन, आपके काम, आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए। तो आई मीन वही है ना वो, एक मैंने इसमें शेर लिखा है, अभी पूरी वो गज़ल भी पूरी नहीं हुई और मुझे शेर पे भी डाउट है अब कि वो पूरी कन्वे कर रहा है कि नहीं, बट बिकॉज उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है तो आई थिंक पीपल विल अंडरस्टैंड। एंड इरशाद। कि बताना ज़रूरत ना होती अगर तो, बताना ज़रूर। या दिखाना दोनों बैठते हैं मीटर के अंदर, कि बताना या दिखाना ज़रूरत ना होती अगर तो, हुआ लोग करते बताते हैं जैसा। हुआ लोग करते बताते हैं जैसा। जैसे अपने आप को बताते हैं वो, हम्म, वैसे वो हुआ करते, वो नहीं है तभी उनको बताना पड़ रहा हाँ बात बिल्कुल ठीक है। मतलब है, राइट? अगर तो अगर अगर ऐसे होते तो बताना ना पड़ता। एग्जैक्टली वो अपने आप ही जाहिर हो रहा होता ना, वो अपने आप ही निकल के बाहर आ रहा होता। हम्म। अगर वही बात है ना कि अगर खुदा से उनको इश्क होता हम्म। तो दाढ़ी अपने आप ही बढ़ जाती, उनको बढ़ानी ना पड़ती, हम्म। समथिंग लाइक मतलब दैट, कि तुम उस एग्जाम्पल को मेरी देखना, तरफ या इशारा कर रहे हो। नहीं, आई थिंक इट्स दाढ़ी मेरी खुद ही बढ़ी है, मैंने नहीं बढ़ाई है। श्योर, sure, why not, right? Like, you know, you don't have to tell anyone how much एग्जैक्टली या you love your daughter, या you know. दैट्स ट्रू। I can see that in your actions, या दैट्स ट्रू। right? If you have to show it, then you don't do it, you're just showing it to people that you do, या right? And that's what sometimes even comes down to like overcompensation, like जब ये होता है कि आप अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे, राइट? जब आप अपने बच्चे को एक एक इमोशनल, लाइक यू नो, प्रेजेंस नहीं दे पा रहे हैं घर के अंदर, किसी से उन्हें बात करने के लिए या कुछ भी है, तो एक वो माहौल नहीं दे पा रहे हैं, तो देन यू ओवर कॉम्पनसेट एज वेल, यू सेंड देम टू लाइक यू नो द मोस्ट एक्सपेंसिव schools, you buy them the most expensive things,
You can do it out of love as well for your child, Hmm. but do you know if it's helping their emotional state or not, Hmm. right? तो वो चीज़ें भी हैं, तो that's the thing, like it's all about overcompensation, that it's like people do it when they are actually lacking in something that they inside they know that is missing, so they overcompensate on the other side, Hmm. ताकि लोगों को तो दिखे ना. तो it's not just limited to religion or these things, it's a part of like our everyday life, like how much, what play, in what areas of my life do I overcompensate. Hmm. There is a thing about like people who have big trucks, but I'm not gonna say that. क्यों, तुम जानते हो बिग ट्रक्स वालों को ऑफेंड ऑफेंड कर दोगे. असल में बात No, बात ये है सम it's people say that they're yeah overcompensating for something. I'm not gonna say for what, but yeah I know what they're overcompensating. बात ये है असल में some sins don't bother society. कुछ जो होते हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं, they some sins don't bother society as long as वो एक बोतल में नहीं है. एक तरीके से ये भी शायर बोल रहे हैं, राइट, कि कुछ चीज़ें होती हैं जो रेगुलर डेली लाइफ बन गई हैं, क्रूल्टी इग्नोर हो जाती है. लेकिन जो रिचुअल I mean, है, Hitler was a vegetarian. I think he didn't drink alcohol or anything. if you're vegetarian you So don't drink alcohol. no. I'm saying like these were the things that he didn't do, Yeah, right? Like but yeah, I think he was a vegetarian, right? I think so I've heard he it. was Like, a let me vegetarian, he didn't drink confirm it. alcohol, so you can, like from a ritual standpoint, वो बात पे सही बैठ रहा था, लेकिन उसकी जो हरकतें थी and the cruelty that he had, Yeah, you know. there was like this famous comedian back then, Eddie Izzard. Eddie Izzard, I think he said, what was like one of his stand-ups said, I think he even became like an MP, member of parliament in British uh, parliament. And I think one time he was doing a stand-up and he was talking about that there was Hitler, but there are so many other leaders, cruel leaders like that as well, the cruel dictators that have existed in the world, that like, but they are not famous, or they don't, because they have killed their own people. Like, they have killed almost their own population, out of some philosophy or ideas or whatever, however they want to run the country or whatever. So it's even like their name is not out there, but if you look at history and everything, you will see that there are many dictators like that, who, like, it's they outwardly they show something, they have like these things, like, like Hitler was a vegetarian, or I won't do this, I won't do that, but there are other areas where they kind of overcompensate into that, right? Yeah, I think all Maybe I lost my chain of all thoughts there, yeah. dictators have done that, killed their own people for, for Yeah, I purposes mean, of whatever purpose they were after, like, but fascism से ही तो आता है. yeah, I mean, it's yeah, that the reason I remember Eddie Izzard was because he's just like, oh, you must get up very early in the morning to kill that many people. You're like, your schedule should look like death, death, quick shower, death, That's afternoon tea. so messed up. So messed up. Yeah, that's messed up. And But that's the reason, like, that's what your schedule should look like if you're a dictator killing your own people. Yeah, because I mean they kill like freaking millions of people, yeah, so sad. Yeah. So sad. Coming back to it, जो हमारा जोश मलिहाबाद साहब का ये शेर है कि जोश मलिहाबादी साहब का ये शेर है कि इंसान के लहू को पियो इज़्ने आम है, इंसान के लहू को पियो इज़्ने आम है, अंगूर की शराब का पीना हराम है. सही बोला. All right, we'll end it here. Thank you, everyone. Thank you.